Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do a love reading, which will be about your love destiny. What is written in your love life as a part of your destiny. So, we'll see that. And today I also have some channeled messages which I thought were coming through for each pile. So we will see that in the reading itself. So firstly, um, also I would really appreciate if you really subscribe to my channel, because I don't really think it takes a lot to do that. I mean, if you feel that I would say कि मतलब मेरी रीडिंग्स आपको कुछ हद तक हेल्प करती हैं, तो yeah, that's all I would want to say. So for pile selection, we will take cards from this deck, this Kalima Oracle. So let's see. We'll take 3 cards which will come up, and I will add a photo for this, which, I mean, the card will not be visible to you, but okay. So I ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे ना लक्ष्मी माता की एनर्जी फील हो रही है ऑल ऑफ अ सडन, जैसे वो इस रीडिंग का पार्ट है और होने भी वाली हैं. सो लेट्स सी. प्लीज गिव अस 3 cards for pile selection. Please give us और मेरे लिए लक्ष्मी माता सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है. आई थिंक I think she symbolizes more than money. It's about abundance. It's about being so tapped in your feminine self, being feeling so beautiful and complete within your own self, embracing that softness within you, embracing that humility within you, sensitivity within you. And also not shying away from enjoying any luxury present in your life. Pleasure also I'm getting, whether it be the pleasure in food or any pleasure that is. So and she is actively coming here and saying that she is really happy that a lot of people are understanding this, because we're actually tapping in a time where people are realizing their worth, people are realizing their value, even though it is not in money terms, but just realizing what they're worth and what they're not. And as a result of that, marriages are not just something that is just a contract, some agreement, or just doing it for the sake of doing it. I don't really think that is the norm of marriage anymore.
So Yama is actually pointing out to the fact that, yeah, even though there are a lot of divorces happening, but the core of love is, has to do a lot with authenticity. It has a lot to do with being complete within your own self. So that is what I'm getting. So let's see now what cards want to come through. Okay. Sorry. This is for pile 1. Okay, this one. Now we will shuffle it again. Okay, this one I think. Yeah, pile 2. And okay, I think pile 3, this one. Yeah. So so see what pile calls to you, and yeah, really go with your gut feeling. Take some deep breaths and then go for whichever group or pile calls to you. So I shall see you at your reading. So hello pile number 1, welcome to your reading. So let's see what is in your love destiny. We will take 11 cards today. Yeah, 11 or 8. Let that be to spirit, because yep. We shuffle it that way also. We will not see the cards first because I have some channeled messages also. So we will look at that messages, then the tarot cards. Okay, this is the first card. These give us 11 cards. Okay, this card also fell. Okay, this one too. Okay. Okay. 6. 7. Thank you. 8. Okay, 9 and 10 and 11. We've got all cards, so we will see that in a bit. But first, I would like to go with the channeled messages that I've written. So first thing, I think pile number 1, आपने कुछ बिट्रेयल एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट में, और वो जो बिट्रेयल है वो मतलब मुझे इस सेंस में दिख रहा है कि या तो आपकी कोई फ्रेंडशिप मुझे लगता है कि आपकी फ्रेंडशिप्स भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है पाइल नंबर 1, और आपने बिट्रेयल वहाँ पर भी एक्सपीरियंस किया है, मतलब वहाँ पर भी, सिंस मैंने भी कहा, मैं नहीं कहने वाली थी, बट हाँ, तो मुझे वो चीज़ आ रही है। एंड या मुझे फ्रेंडशिप के केस में आ रहा है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आई थिंक मुझे लगता है पाइल नंबर 1 आप ऐसे लोग हैं जो
एक फ्रीडम हमेशा चाहेंगे अपनी अपने रिलेशनशिप में, बिकॉज आई थिंक आप भी उतने ही केयर फ्री से हैं थोड़े से विथ योर पार्टनर, because you also give that space to people. So I think you also want that kind of space, that freedom. I wouldn't use the word space, yeah, but freedom आ रहा है मेरे को. देन इसके बाद मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आई थिंक अगेन मुझे लक्ष्मी माता की एनर्जी भी कनेक्ट हुई यहाँ पे, तो और वो मुझे जनरली भी हुई थी. तो मुझे यहाँ पे कुछ कलर्स आ रहे हैं दिमाग में जो हैं बर्गंडी, वाइन कलर, रेड आया था एंड पिंक भी आया था, राइट? या पिंक कलर भी है यहाँ पर. इसके बाद मुझे लगता है कि आपके आई थिंक पाइल नंबर 1 आप जो जो ऑपोजिट जेंडर है या जो भी जेंडर के लोग, मतलब लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में आना पसंद करेंगे, तो वो जो लोग हैं वो लोग ना आपकी एक एस अपील है. कुछ रीजंस की वजह से मैं वो नहीं बोल सकती, बट मैं कहूँगी कि आपकी एक एस अपील है एंड दैट इज़ नॉट वेरी एक्सटर्नल, इट इज़ अ लॉट इंटरनल. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद ऐसे लोग होंगे कि आप ना लाइक आपका सारा टाइम ना ध्यान इस चीज़ पे नहीं रहता होगा कि मुझे लाइक अच्छा दिखना है या अट्रैक्टिव दिखना है. हर टाइम नहीं होगा. इट्स लाइक थोड़ा सा आपकी मूड पे भी डिपेंड हो सकता है ये, बट आई थिंक आपको पसंद आता है, ऐसी बात नहीं है. बट आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करते हैं, पॉइंट नंबर 1. और ये मुझे क्या आ रहा है, और ये भी है कि बट ये कि आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं कहीं ना कहीं, पॉइंट नंबर 1. जो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि आपको उन्हें ना लोगों पे मतलब आपको उन स्टैंडर्ड्स को ना एक चेकलिस्ट नहीं बनानी है. एक स्टैंडर्ड मतलब कि एक वही कि एक उनको चेकलिस्ट नहीं बनानी कि कि सारी चीज़ों में फिट इन होना चाहिए ऐसा कुछ, क्योंकि वो फिर आई थिंक अगेन वो फिर एक कंट्रोलिंग वाली फैक्टर आ जाती है बीच में. और ये भी होता है कि यहाँ पे एक्चुअली मुझे लगता है जैसे ना आपको एक लेसन सिखाया जा रहा है, या आपको अपनी लाइफ में सिखाया जाएगा, लव लाइफ में, कि देयर इज़ अबंडेंस इन लैक, अबंडेंस इन लैक. क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी पास्ट में आपकी लव लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है. शायद आपको थोड़े से आई थिंक एक्सप्लोजिव से पार्टनर्स मिले हैं जो लाइक मे बी आपकी अगेन आपको समझ नहीं पाते और आपकी सॉफ्ट साइड को इन सम वे वही नहीं समझ पाते उस साइड को. तो आई थिंक इसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है वो थोड़ी सी या लैक रहा है उसके अंदर. बट इट्स लाइक यहाँ पर जैसे लक्ष्मी माँ कह रही हैं कि ये जो साइड है, सॉरी बोलूँ, ये जो सीन रहा है आपकी लव लाइफ में कि एक लैक रहा है, वो भी एक रीज़न से रहा है. मतलब अगर वो लैक आप एक्सपीरियंस नहीं करते तो आपको जो अबंडेंस मिलने वाली है अपनी लव लाइफ की डेस्टिनी में, वो आपको क्लियर मतलब उसकी आपको वैल्यू नहीं पता चलती. और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको अपनी वैल्यू नहीं पता चलती कि आप कौन सी चीज़ के लिए वर्थ है, कौन सी चीज़ के लिए नहीं है. यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है. इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ साइंस आ रहे हैं जो मैंने लिखे थे, एरीज, जेमिनी, एक्वेरियस, और फिर मुझे कुछ नक्षत्र भी आया. एक तो मुझे मृगशिरा नक्षत्र आया, एक मुझे स्वाति नक्षत्र आया, और एक मुझे पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आया. उसके अलावा एक और मैसेज है कि अगेन वही आपकी एस अपील के बारे में, जो ज़्यादा ओवर्ट नहीं है, ज़्यादा एक्सटर्नल नहीं है. और आई डोंट थिंक आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते, बट
जो भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं वो इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं कि एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत लोगों को खुद नहीं पता कि वो एग्जैक्टली है क्या, मतलब दे कैन नॉट रियली पिन पॉइंट टू ओके दिस इज़ द फैक्ट वाई यू नो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर वन. आई डोंट रियली थिंक दैट इज़ द केस फॉर यू. यू नो कि मतलब उन्हें पता ही नहीं कि ये रीज़न है या नहीं है, आपकी एनर्जी के बारे में. और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे लोग ना लाइक मुझे लगता है कि आप लोग ना लाइक कोई फेमिनिन एनर्जी से, या आप मुझे लगता है कोई फेमिनिन एनर्जी को ही पूजते हैं, या कोई फेमिनिन गॉड मतलब कोई कोई गॉडेस में बिलीव करते हैं ज़्यादा. लाइक मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है क्योंकि वो आपको ना मतलब बहुत ऐसे, मुझे बहुत ही मदरली टाइप एनर्जी आ रही है उनसे, जैसे वो यहाँ पे आके बोल रहे हैं आप लोगों को. ये मुझे आ रहा है. एनीथिंग एल्स? फिर मैंने यहाँ पर एक और सेकेंड. हाँ, तो वो यहाँ पर आई हैं जो गॉडेस एनर्जी, वो ये भी बोल रही हैं कि आप मतलब आप उनके चाइल्ड हैं, पाइल नंबर वन. और ये यू नो लाइक फ्रॉम द मोमेंट आपकी सोल का ओरिजिन हुआ है तब से वो आपको लेके यू नो लाइक शी इज़ प्रोटेक्टिव ऑफ यू, पाइल नंबर वन. और वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं बिकॉज आपने आपकी सोल ने और मतलब आपकी सोल ने और उन ये जो गॉडेस हैं आप लोगों ने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है. और ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये इसलिए कि वो आपको हेल्प करेंगी आपकी लव लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए. वो आपको सिखाएंगी कि कैसे अपनी लव लाइफ को यू नो पूरी ज़िंदगी का यू नो बड़ा मिशन नहीं बनाना. इट्स लाइक उसको बैलेंस में रखना. और मुझे एक और एनर्जी आ रही है, मुझे लगता है आप लोग ओवर गिवर्स हो सकते हैं. आप लोग को शायद समझ नहीं आता है कि यू नो कि when to withdraw a bit, या you know when to be just you know मतलब हर टाइम आपको चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है सामने वाले पर्सन के लिए. कभी आपको इट्स लाइक ये समझने की ज़रूरत है कि प्रेजेंस भी बहुत होती है एक पर्सन के लिए यू नो. तो आई थिंक ऐसे आपको कुछ चीज़ें ये गॉडेस सिखा रही हैं और सिखाएंगी भी लाइक मोर. अगर जो भी चीज़ें बाकी सबके लिए अलग अलग हो गई तो वो चीज़ें आप सीखेंगे. और फिर मैंने यहाँ पर मून साइंस भी लिखे थे जो मुझे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और लीव आए थे. तो इन सारे साइंस या नक्षत्र में से आपका हो सकता है, बट रियली नॉट नेसेसरली ऐसा हो. मतलब लाइक अगर ओवरऑल पूरा मैसेज आपसे मैच करता है, आपसे रेजोनेट करता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइंस आने चाहिए. आप उसको मतलब अगेन टेक वॉट एवर रेजोनेट्स. सो ओके, अब हम पहले ये कार्ड से देखेंगे आपका मास्टर कार्ड क्या है. अभी देखते हैं. सो आपका मास्टर कार्ड है धूमावती माँ. वाओ. आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे पहले. ओके, सो 9 of Wands, the Queen of Swords, the World, the Lovers, the 9 of Pentacles, the 8 of Wands, the King of Wands, second, the Strength card, the Empress card, the 6 of Swords. इनको मुझे थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए ना, जगह ही नहीं बची. Then the Temperance,
जो मैंने कहा वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स, तो पहले तो धूमावती माँ आपके लिए आई है। ये आपका कार्ड है, अगर ये विजिबल है तो थोड़ा पास लेके आओ, या यहाँ पे दिख रहा होगा। तो धूमावती माँ ये सिंबलाइज करती हैं कि देयर इज़ अ बिगिनिंग टू एन एंड, लाइक द बिगिनिंग ऑफ द एंड वाली चीज़ मुझे आई यहाँ पे। और माँ यहाँ पर बताना चाहती कि आपको ना कुछ सच्चाई दिखाई जाएगी अपनी लव लाइफ में, लोगों को लेकर, जो आपको हेल्प करेंगी उन 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 रिश्तों में जैसे आप हैं उससे खुद को, मतलब उन 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 रिश्तों से परे देखना अपने आप को, इसमें हेल्प करेंगी वो। और माँ यहाँ पर एक ऐसी फेस के बारे में बताती है जहाँ पर अगेन मुझे बिट्रेयल वाली चीज़ आ रही है। और ये भी है कि माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगी कोई भी नेगेटिविटी से, कोई भी अनफेयर बिहेवियर से। और ये भी कि माँ ने आपको प्रोटेक्ट किया भी है कोई भी अनफेयर बिहेवियर से, पाइल नंबर 1, क्योंकि वो हैं, वो यहाँ पर आपको हेल्प करने ही आई हैं। मैं बुक से देखना चाहूँगी ये वाला कार्ड ज़रा सा, मुझे लग रहा है यहाँ पर मैसेजेस हैं। 22 नंबर, धूमावती माँ। मुझे एक और मैसेज आ रहा है इससे कि यहाँ पर ना माँ जो है वो कुछ तो उन्होंने आपको ना, आई थिंक मतलब आपकी लव लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ होगा पास्ट में जिसने आपको ना इन सम वे चेंज किया है, पाइल नंबर 1। और वो चेंज ऐसा था कि आप ना पहले तो वो जब चीज़ हुई ना तो आपको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या मेरे साथ। कुछ तो मुझे ट्रेजेडी सुनाई दे, तो कुछ तो ट्रेजेडी हुई आपके पास्ट में लव में। और वो आपको पहले समझ नहीं आया क्या हुआ, फिर आपने काइंड ऑफ उस चीज़ से आप बाहर आए हो इन सम वे। और ये मुझे मतलब लिटरली फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस वाली एनर्जी आ रही है। यस, जैसे आपकी फेमिनिटी की किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी जो एक वर्थ है उसको किसी ने नज़रअंदाज किया, आपकी जो एक सेल्फ है उसको किसी ने काफ़ी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। एंड देन you were just like left out in the cold when you actually, मतलब जब आपको ये सब पता चला तो फिर आप you actually felt left out in the cold. मैं बुक से देखती हूँ। Who beloved mother who dwells in the smoke, who presides over the most difficult transitions, she who knows that certain endings are unavoidable. There are necessary predecessors, to radical reinvention. Her presence brings the message that that though disappointment, defeat, or loss, and the negative repercussions of such experiences may cause suffering for a time, they will not limit your future happiness. They are a means for opening as yet unrecognized pathways for fulfillment.
Your trust must be unconditional at this time. Later, you shall see everything has worked for you for the absolute best. Healing begins with an acknowledgement of suffering. You cannot resolve an issue if you deny it exists. Bearing honest witness is the only way for change to begin. तो ये मुझे इसमें से लगा था मुझे पढ़ना, क्योंकि बहुत बड़ा है, तो मुझे सी फीलिंग है कि मुझे मेरा थ्रोट चक्र थोड़ा ऑफ क्यों जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये पार्ट मुझे पढ़ना था इसमें से। इसमें भी एंडिंग्स की बारे में बात की गई है जैसे हम देख रहे थे। सो या नेक्स्ट अभी हम टैरो कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज है। पाइल नंबर 1 मुझे वही मैसेज आ रहा है यहाँ पर, कॉन्फर्मेशन भी है कि मतलब जैसे ना आपने खुद को वही एक आप मतलब आपने कुछ तो अपनी लाइफ में ऐसे ओवरकम किया है इन टर्म्स ऑफ लव, जो थोड़ा सा मतलब टायरिंग था और बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जॉस्ट करने वाला था, और वो आपने एंड कर दिया है। और वो एंडिंग से आपकी लाइफ में ना एक कुछ तो एक स्पार्क सा आया है, जो लाइक वो जो स्पार्क है वो इट्स लाइक कि आपके अंदर है पाइल नंबर 1। और वो स्पार्क जो है उसका आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट है कि आपके वर्ड्स ना लाइक मुझे लगता है आप थोड़े से लाइक एक्सटर्नली आप थोड़े से रूड कम अक्रॉस होते होंगे डिफरेंट जेंडर्स को। तो आई थिंक पर ये ऐसे कि आप मुझे लगता है आपके जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मुझे कट थ्रोट सुनाई दे रहा है, ऐसे मतलब बहुत ही ऐसे कटिंग एज होंगे, और वो आपको एक आई थिंक आपको एक अथॉरिटी वाली सेल्फ में एक फील कराते, एक वर्थ फील कराते अपने बारे में। एंड आई थिंक ये भी है कि ऐसा नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए या चीज़ों मतलब लाइक ऐसे मतलब आप किसी को दिखाने के लिए ये नहीं करते। इट्स लाइक आप अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं, वही लक्ष्मी माँ जैसी हैं अगर आप एक फीमेल है तो। और अगर आप मेल है तो अगेन very understanding, very mature, very calm and composed within yourself. I mean obviously situations में कभी कभी हमें नहीं समझ में आते, बट ओवरऑल मैं कहूँगी आप काफ़ी काम और कंपोज रहते हैं। तो ये जो आपकी एक सेल्फ है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं, जो काफ़ी रूड कोल्ड कम अक्रॉस होती है। यस पर ये जो एनर्जी है मुझे लगता है ये बहुत टाइम तक लाइक ये आप मास्क नहीं कर सकते व्हेन यू आर विथ सम पर्सन। मतलब मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा है आपकी लाइफ में या आपकी लव लाइफ मतलब कि आपकी लव डेस्टिनी में लिखा हुआ है पाइल नंबर 1 कि आप एक ऐसी पर्सन से मिलेंगे जो आपको हेल्प करेगा टू really remove these guards, this queen of swords वाली जो आपकी इमेज है उसको रिमूव करने में वो हेल्प करेगा। और वो जो पर्सन है वो आपको फिर एम्प्रेस वाली एनर्जी में लेके आएगा, क्योंकि एम्प्रेस वाली एनर्जी जो होती है वो वेरी फुलफिल्ड विद इन हर ओन सेल्फ, वेरी complete. She doesn't really need to prove something to someone, या
मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी ऐसी नहीं होती, बट एम्प्रेस जो है उन लाइक क्वाइट पावर, इफ आई से क्वाइट पावर, बट या ये मुझे आ रहा है। हाँ, और ये भी है कि एम्प्रेस अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जी में सस्टेन तभी कर पाती जब शी हैज़ एन इक्वल, शी हैज़ हर एम्परर, या समवन विथ दैट level of fire, that level of passion, and that level of mentality, same mentality, right? So that is what I'm getting. and यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी है, और स्ट्रेंथ कार्ड एक मेरे लिए पर्सनली ये एक गॉडेस एनर्जी को डिपिक्ट करता है। और ये मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, तो मैं फिर से बोलूँगी, क्योंकि मतलब लाइक इस डेक में मैं ये जो लेडी है, मैं इनकी आँख में देखती तो मुझे एक्चुअली में लगता है जैसे काली माँ या दुर्गा माँ मुझे देख रही हैं। ये मेरे लिए एक गॉडेस एनर्जी को सिग्निफाई करता है। तो आई थिंक दिस कन्फर्म्स दैट यू आर रियली कनेक्टेड टू अ गॉडेस। देन और ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और ये मुझे ना ये मुझे एक हायर लेवल सोलमेट वाली एनर्जी तो आ रही है, बट मैं ये कहूँगी कि सबके लिए अलग अलग होगा थोड़ा सा। मुझे सो आई एम नॉट रियली स्पेसिफाइंग दैट दिस इज़ अ सोलमेट बिकॉज अगेन बहुत लोग जनरल रीडिंग बहुत एकदम ही उस चीज़ को मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब हो सकती हैं चीज़ें सच, बट आई कैन नॉट रियली से कि हर जो भी इस पर्सन में जो भी इस ग्रुप में दिख रहा है उन सब के हाई लेवल सोलमेट होंगे। बट दैट्स मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी उस पर्सन के साथ जो केमिस्ट्री होगी, आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो 10 on 10 होगी फॉर श्योर। और ये जो पर्सन है ये जो पर्सन है ना, ये कुछ हद तक ना मुझे लगता है एक इंस्टेंट रिकग्निशन हो सकता है जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले। इट्स लाइक ये पर्सन आपकी प्रॉक्सिमिटी में आते ही आपको कुछ तो ऐसा फील हो सकता है, और मुझे लगता है आपको ही फील होगा, शायद सामने वाले पर्सन को मतलब उनको पता नहीं चल रहा होगा कि उन्हें कुछ ऐसा फील हो, मतलब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो ऐसा है, दिस पर्सन मतलब पाइल वन में कुछ तो ऐसा है, बट आपको उनको समझ में नहीं आएगा इतना ज़्यादा, और वो एक्ट कर रहे होंगे उस चीज़ पे, पर आप थोड़े से मुझे लगता है आप ना सोचने लग जाओगी कि यार ये क्या हो रहा है, ये कौन है ये पर्सन। तो मुझे फर्स्ट मीटिंग के बारे में भी आ रहा है, आप ऐसे सोचने लग जाओगे लाइक दिस पर्सन विल एटलीस्ट एक्ट, पर आप थोड़े से अपने हेड में रह जाओगे। पॉइंट नंबर 1। या एनीथिंग एल्स? देन ये जो लाइक आपके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, आप ना एक मुझे सुनाई दे रहा है, यू लाइक एंजल वॉकिंग दी अर्थ। आप वो एंजल वॉकिंग दी अर्थ क्यों है? बिकॉज आप ना पहले तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी लाइफ में पीस ला सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने आप को कियोटिक सिचुएशंस में से निकाल के एक एंडिंग करके अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है कि नहीं यार एंडिंग, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि नहीं एंडिंग कर दी, बट सच में कोई चीज़ को ख़त्म करना एनर्जेटिकली, मेंटली या इन एवरी सेंस इट इज़ नॉट ईजी,
you are really, with that ending, you are really letting a part of yourself die. So yes. एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि ये ना मतलब इट्स लाइक आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा पाइल नंबर 1 कि आप अपने करियर में एक एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग फिगर हो. मतलब आई थिंक आपकी पर्सनालिटी जब वर्क वाली एस्पेक्ट में आती तब आप काफ़ी ज़्यादा आई थिंक या मतलब आप अडेप्टेबल होते हैं. तो आई डोंट रियली थिंक या ये एक मैसेज आया अचानक से. यू आर वेरी अडेप्टेबल इन योर वर्क एनवायरनमेंट ऑल्सो. यस या. और ये भी है कि आप एक बडिंग थॉट हमेशा रहेंगे. आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक बडिंग थॉट रहेंगे, एक बर्निंग थॉट रहेंगे. जैसे इसके दिमाग में ऐसे आग सी लगी हुई है. तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम द मोमेंट यू फर्स्ट you actually see each other or you actually be in each other's presence. कुछ तो ऐसे एक ख्याल एक दूसरे का आप लोग के मन से जाएगा ही नहीं. और आप लोगों की मुझे मैरिज भी दिखाई दे रही है. इफ़ इट इज़ समथिंग दैट यू रियली वांट फॉर योरसेल्फ, तो मुझे लगता है कि आपकी मैरिज भी इसी पर्सन से होती दिखाई दे रही है. और वो पर्सन कैसा है वो मैंने डिस्क्राइब किया है. और एक और मुझे जानना है कि अगर आपकी मैरिज के बारे में कुछ यहाँ पर आए तो, या एनी पोटेंशियल कमिटमेंट वाले फेज के बारे में रिलेशनशिप है तो. ओके 2-3 कार्ड ये एक लेंगे जो फ्लिप हो. 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये रख रहे हैं. एक और एज भी मैं बताना चाहूँगी पाइल नंबर 1 को. एज अगर आप बताना चाहें तो. ओके थैंक्स. तो पहले तो मुझे एज के लिए ये आ रहा है कि आई थिंक आपकी थोड़ी लेट ही मैरिज होगी पाइल नंबर 1. आई डोंट रियली थिंक कि आप मुझे 30 सुनाई दे रहा ऑनेस्टली. 30 की एज में आपकी मैरिज हो सकती है. या एज में तो मुझे यही आ रहा है. एक ये भी है कि लाइक आपकी कमिटमेंट फेस के बारे में मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग का जो कनेक्शन होगा वो बहुत ग्रेजुअल होगा. मुझे लगता है आप लोग शायद शादी करने से पहले आप लोग 9 से 10 साल शायद एक दूसरे को डेट करें, या लाइक 8 साल भी हो सकता है किसी के लिए. तो आप मतलब दैट इज़ द अमाउंट ऑफ ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे लग रहा है आप लोग डेट करेंगे. और ये क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी भी है, आपको बोला भी जा रहा है क्योंकि ये जो फेज़ है आप इस टाइम पे एक्चुअली में एक दूसरे की काफ़ी फियर्स को, काफ़ी सबकॉन्शियस बिलीव्स को हील करेंगे. एक दूसरे की फियर्स, ये सबकॉन्शियस बिलीव्स को आप लोग हील करेंगे. एंड इट्स लाइक इतना टाइम लगता है, लाइक इतना टाइम आप लोगों को लेना इसलिए भी चाहिए बिकॉज ये टाइम अगेन आप लोगों को चाहिए होगा ऑन अ सोल लेवल टू एक्चुअली लाइक let that fear, let that subconscious beliefs come to the surface. तो जब वो आएंगी सरफेस पे तब आप लोग उनको हील कर पाएंगे. एंड या एनीथिंग एल्स. मैरिड लाइफ के बारे में एक कार्ड प्लीज़ हम देखना चाहेंगे. मैरिड लाइफ के बारे में एक कार्ड हम देखना चाहेंगे. One card please. Okay.
मैरिड लाइफ में लाइक मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही कि थोड़े से आप लोगों के क्लैश सॉरी थोड़े से आप लोगों के क्लैशेस रहेंगे, बट वो जो क्लैशेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना आप लोगों की आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेके रहेंगे आई थिंक। और वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, मतलब ऐसे मुझे कोई सिग्निफिकेंट ऐसे क्लैशेस नहीं दिख रहे कि मतलब बात ही नहीं करेंगे, नो कांटेक्ट हो गया, ये सब नहीं। बट ये मुझे लग रहा है कि मतलब लाइक जस्ट ये थोड़े से होंगी चीज़ें जो आप लोग को एक्चुअली में एक दूसरे को समझने में और हेल्प करेंगी। और ये इसलिए भी नेसेसरी है बिकॉज ये इन सम वे कनेक्शन को स्ट्रेंथन करेंगी आप लोगों के। और ये आप नोटिस करेंगे कि जितने ज़्यादा क्लैशेस होंगे उतना आप लोग का एक्चुअली में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ओवर टाइम। और मुझे फ्यूचर में ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग की जो मैरिज होगी, आप लोग का जो रिलेशनशिप होगा, इट्स लाइक मुझे एक ऐसी कपल की वाइब आ रही है जो लाइक ईयर्स या आप लोग ओल्ड हो जाएंगे तब भी आप लोग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, या अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज़्यादा मुझे केमिस्ट्री रहती है, वो हमेशा वैसी ही रहेगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू लाइक जस्ट गो अवे और फेड अवे। यस, yeah, so that is all I'm getting for you. Pile number one, again, it is a general reading, so take what resonates, leave the rest. And if you like my style of reading, please like, share and subscribe to my YouTube channel. And I shall see you in my next reading. Until, take care, lots of love.